Assalamu alaikum. My name is Madhi Umar Khan, and today my topic is STEAM learning. Okay, so what is STEAM learning? STEAM learning, okay, what is STEAM learning? First of all, I'm going to tell you about myself. My name is Madhi Umar Khan, and I'm working as a pre-primary teacher in Shah Bilal Public School. And I have 12 years experience as well. Okay, first of all, we are going to discuss about STEAM learning because my topic is STEAM learning. So we are going to discuss today what is STEAM learning, then why is STEAM learning is important, the components of STEAM learning, an example of STEAM learning in action, and what are the challenges and opportunities we are facing. So, STEAM learning basically is an educational approach that integrates science, technology, engineering, arts, and mathematics. And this approach encourages students to engage in hands-on project-based learning that fosters critical thinking, problem solving, creativity, and collaboration skills. Basically, and Steve, this it emphasizes hands-on project and the application of knowledge and skills to real-world problems, helping students the relevance of what they are learning, and encourage them to think like a scientist and an engineers and artist. In STEAM learning, students are given open-ended challenges or projects that require them to use multiple disciplines to find solution. For example, they might be tasked with designing and building a model using engineering principles or creating a digital animation that combine art and coding skills. It's only helps students develop a deeper understanding of the subject matter, but also promote a growth mindset and encourages a love for learning. First, overall, STEAM learning is an innovative and effective approach to education that prepare a child for 21st century by equipping them with the skills they need to succeed in complex and interconnected world. STEAM learning different disciplines सिखाती है बच्चों को और then definitely students are able to see how everything fits together and gain a deeper understanding of the world around them. STEAM learning में हमें बच्चों को सिर्फ एक छोटी सी चीजें नहीं बतानी होती हैं बल्कि हम बच्चों को स्टीम लर्निंग वास्ट वोकैबुलरी देनी होती है। स्टीम लर्निंग में अगर हम बच्चे को एक लीफ के बारे में भी बता रहे होंगे तो डेफिनेटली वो इंटीग्रेट करेगा साइंस से, आर्ट से एंड मैथ से। किस तरह इंटीग्रेट करेगा वो एक लीफ? हाउ लीफ इज ग्रीन इन कलर, येलो इन कलर एंड ब्राउन इन कलर इन ऑटम सीजन। इससे हमने क्या किया, बच्चे को लीफ के बारे में बताया कि लीफ हमारा जो क्या हुआ कि कलर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स आ गए, थ्री टाइप्स ऑफ कलर्स आ गए हमारे पास। हमने बच्चों को उससे जो है डिस्क्रिमिनेट करा दिया कि देखें ये तीन कलर्स हैं। देन हमने बच्चे को बताया कितने लीव्स हैं, हाउ मेनी लीव्स, 1 2 3 4 5। हमने इसे मैथ से इंटीग्रेट करा लिया। देन लीफ प्रिंटिंग करा लिया हमने बच्चों से। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हमने एट अ टाइम आर्ट भी करवा लिया, हमने एट अ टाइम बच्चे को मैथ्स भी बता दिया, हमने एट अ टाइम बच्चे को साइंस भी बताई इसके अंदर। ठीक है ना, हमने इस बच्चे को सर मैथमेटिक्स भी बताई। साइंस हम ऐसे बता सकते हैं कि प्लांट्स कैन ब्रीथ, हम जो है प्लांट्स जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं, तो हम इसे साइंस में भी काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम लर्निंग। ठीक है, साइंस प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द नेचुरल वर्ल्ड, हाउ इट्स वर्किंग। साइंस क्या करती है, प्रोवाइड करती है फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल वर्ल्ड से इंटरलिंक करती है साइंस। तो हम बच्चे जो है वो हमारे नेचर चीजों से, नेचर से खुद ब खुद जो है वो क्लोज हो जाएंगे ड्यू टू स्टीम लर्निंग। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इनेबल्स टू अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक आवर लाइफ इजियर। तो बच्चे टेक्नोलॉजी से खुद ब खुद ही, हमारा जो करिकुलम है इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि बच्चा टेक्नोलॉजी को भी यूज करे। बच्चे को जो है वो पता होना चाहिए कि हाउ टू डू अ कोडिंग, हाउ टू यूज अ लैपटॉप, हाउ टू यूज अ टैबलेट। बच्चों को सिर्फ गेम्स भी नहीं लगाने, हमें बच्चे को डिफरेंट चीजें सिखानी होंगी। बच्चे को ऑनलाइन गेम्स सिखाना होगा कि इस तरीके से हम इस चीज को लेके चल सकते हैं। रोबोटिक्स, आजकल रोबोटिक्स इतना ज्यादा जो है वो कॉमन है, तो डेफिनेटली हम अब बच्चे को प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे को डेफिनेटली, बच्चे को वो एक कहना चाहिए एक की मिलेगी बच्चे को कि हमें ये करवाना है।
तो बच्चा उस की को पकड़ेगा तो हम इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। देन इंजीनियरिंग इन्वॉल्व डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। मैं अगर छोटे बच्चों की बात करूं, 3 to 6 years के बच्चों की बात करूं, तो दे आर प्लेइंग लेगो। लेगो इज वेरी वेरी बेनिफिशियल गेम, जो हम बच्चों को अगर देते हैं तो बच्चों की माइंड ग्रो होता है लेगो देने से। ब्लॉक से बच्चा टावर बिल्ड कर सकता है। तो ये इंजीनियरिंग में भी बच्चे को हम इंटीग्रेट करवा सकते हैं इस टीम के थ्रू। आर्ट्स हेल्प अस टू एक्सप्रेस अवरसेल्व्स क्रिएटिवली एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आर्ट्स आप सबको पता ही है, आर्ट जो है वो हेल्प करेगी बच्चे को थिंक क्रिटिकली। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चा सोचता है, बच्चा अपने इर्द गिर्द देखता है। इवन कि हमें बच्चा जो कुछ सोच रहा होता है वो बच्चा जो है वो बहुत इजीली जो है वो ड्राइंग के थ्रू आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स शेयर कर सकता है। Then mathematics provides the tools we need to analyze, enter data and to solve complex problem. मैथमेटिक्स में हम बच्चे को जो है वो एक एनालाइज करने के लिए दे सकते हैं। क्योंकि मैं छोटे बच्चों की बात करूंगी, क्योंकि मेरा लेवल जो है वो 3 to 6 years का है, तो इसमें हम बच्चे को जो है वो काउंटिंग करवाना सिखा सकते हैं, हम बच्चे को स्किप काउंटिंग सिखाते हैं, हम बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो डेफिनेटली जब बच्चे की बेस स्ट्रांग होगी तो बच्चा आगे जाकर जो है वो इस तरीके से काम कर सकेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, व्हाई इज स्टीम लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। STEAM learning is important. STEAM learning is more important, more than just a buzzword. It's critical approach to education that prepares the students for the future. ठीक है, STEAM learning हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल की दुनिया में जो है वो सिर्फ कॉपी वर्क नहीं चलता। आजकल की दुनिया में सिर्फ कॉपी पे काम नहीं होता। आजकल की दुनिया में सिर्फ स्लेट पे काम नहीं होता, बल्कि आजकल दुनिया बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। तो हमें जो है वो बच्चों को उसी तरीके से लेके चलना है, उसकी क्रिटिकल अप्रोच को हमें जो है वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। By integrating STEAM learning into creativity and critical thinking, this skill is essential success for the 21st century। जैसा मैंने आपको बताया कि हम इंटीग्रेट करते हैं इसको जब हर चीज से, तो ही बच्चा हमारा 21st सेंचुरी के से को फेस करने के लिए बेसिकली जो है वो प्रिपेयर होगा। ओके, ये एकेडमिक को इम्प्रूव करने में भी बहुत ज्यादा काम आता है, इम्प्रूव करेगा, सॉरी। और जो है वो डायरेक्टली, अगर हम इसको डायरेक्टली भी ना करें, सिर्फ हम कुछ ही इसके एसेंशियल्स ले लें, अगर हम कुछ ही पॉइंट्स अगर इसके ले लेंगे तो ये हमें बहुत हेल्पफुल रहेगा करिकुलम में भी। ओके, last, students who participate in STEAM learning projects are better prepared for college and careers. They are more likely to succeed in whatever they choose to do. जो बच्चे इसके थ्रू इसके जो है स्ट्रीम लर्निंग की जो बेस होती है उसके थ्रू अगर स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडीज, या इसकी अगर प्रिपेयर्ड होते हैं इसकी लर्निंग के थ्रू, तो फिर उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी पूरी दुनिया में। नॉट इवन इन पाकिस्तान, नॉट इवन इन कराची, नॉट इवन इन बला बला, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको बहुत ज्यादा जो है वो सीखने को मिलेगा और वो सीखेंगे। ओके, देयर आर सेवरल रीजंस हम क्यों स्ट्रीम लर्निंग को इतना चूज कर रहे हैं, क्यों एजुकेटर्स और स्कूल जो स्ट्रीम लर्निंग को चूज कर रही है। तो सबसे पहली बात है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। स्ट्रीम लर्निंग फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। इट हेल्प स्टूडेंट्स अप्लाई देयर नॉलेज इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी, इनोवेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये बच्चों के फ्यूचर करियर के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चों की जो है वो सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों की नॉलेज जो है ना वो रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में जा रही होती है। बच्चों को हम की नॉलेज की अप्लाई करते हैं, बच्चों की जो नॉलेज जो है वो क्रिएटिव होती है, इनोवेटिव होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। एंड देन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। STEAM learning often involve groups, projects, and collaborative activities. This encourage students to work together, share ideas, and learn from each other. It promotes communication, cooperation, and the development of social skills, which are essential in today's interconnected world. बच्चा सोशलाइज होता है, सबसे बड़ी बात है, जब बच्चा कम्युनिकेट करेगा तो बच्चा सोशलाइज होगा। अगर आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, एंटी सोशल है, तो फिर वो बच्चे के लिए बहुत मसला हो जाता है। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए भी नहीं बल्कि बड़े बच्चों के लिए भी बहुत मसला होता है। तो इस
स्टीम जो लर्निंग है उसमें जो एक बेसिक, जैसे कहना चाहिए एसेंशियल है या रीजन है कि ये है, इससे क्या होता है बच्चे में टीम वर्क करने की सलाहियत पैदा होती है। वो कोऑर्डिनेट करता है, वो कोऑपरेट करता है, वो कम्युनिकेट करता है। 3 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड लाइफ: कम्युनिकेट, कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट। तो इससे क्या होता है बच्चे को जो है वो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। देन एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन: स्टीम लर्निंग इंटरकॉर्पोरेट्स इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज सच एज एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएटिव टास्क। ठीक है, इससे बच्चे को जो है मोटिवेशन मिलती है, वो बिजी रहता है, उसका माइंड कहीं बिजी रहता है, वो सोचता है। जब वो सोचता है तो डेफिनेटली कोशिश करता है वो इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंट करता है तो डेफिनेटली ये हमारा काम है कि हम उसे मोटिवेट करें। देन फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि फ्यूचर जॉब्स मिलना आसान हो जाएंगी, क्योंकि आजकल का जो जो एरा है वो हमारा 21st सेंचुरी का है, तो बच्चों के लिए इस चीज में आसानी होगी। ओवरऑल स्टीम लर्निंग ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक अप्रोच टू एजुकेशन, जो बच्चों को चैलेंजेस फेस करना सिखाता है। ओके, टॉप 10 वेज कैन टीच स्टीम। देयर आर टॉप 10 वेज, जो हम 10 जो है वो रास्ते ऐसे हैं हम बच्चे को जो है वो टॉयज के थ्रू बता सकते हैं कि हमें जो है वो किस तरीके से जो है वो स्टीम लर्निंग के थ्रू बच्चा सीख सकता है। टॉयज जो है वो जॉयफुल, बच्चा खुश होता है टॉयज को देख के। सबसे बड़ी बात तो ये, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आती है, कब रखना है, कब उठाना है, कब खेलना है, कब कब खाना खाना है, कब सोना है, कब जागना है। बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन लेकर आता है ये। आप सबसे बड़ी बात ये, बच्चे को वाइंड अप करना सिखाते हैं कि बस अब ये आपने खेल लिया, अब ये आपका, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको वाइंड अप करो। ठीक है। देन मिस्टेक्स आर ओके, फेल फर्स्ट, फॉल फर्स्ट। लाइक बच्चा गिरेगा, खेलेगा, गिरेगा नहीं तो सीखेगा। दिस इज अ मेन पॉइंट कि बच्चा गिरा नहीं तो बच्चे ने सीखा नहीं। बच्चे को फ्री जोन दें, उसे खेलने दें, वो खेलेगा तो सीखेगा, वो टॉयज के थ्रू सीखेगा, वो ब्लॉग्स बनाना सीखेगा। ब्लॉग्स के थ्रू भी वो 10,000 चीजें सीख सकता है। कैसे? सबसे बड़ी बात है वो कलर सीखेगा, कलर शॉर्टिंग एक्टिविटी सीख सकता है, काउंटिंग सीख सकता है, वो शेप सीख सकता है। बच्चा आपका बिल्डिंग बनाना सीख सकता है, बच्चा डिफरेंट जो है वो इसे चीजें बनाना सीख सकता है ब्लॉग्स के थ्रू। तो ये कोलैबोरेट। देन नंबर 3, सोशल स्किल्स। बच्चे की सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। ठीक है ना, बच्चा कोलैबोरेट करता है दूसरे बच्चों से। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो सीखता है बहुत सारी चीजें दूसरे बच्चों से भी। तो राइट, टॉयज टीच किड्स टू टेक हेल्दी रिस्क। बच्चा रिस्क लेगा तो सीखेगा, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो इंकरेज होगा, उसमें करेज आएगा कुछ सीखने का। एक दफा गलत करेगा, 2 दफा गलत करेगा, बट अल्टीमेटली तीसरी दफा को काम बिल्कुल सही करेगा। नंबर 6, प्रमोट करती हैं टॉयज बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए। आजकल एबेकस है, अब बच्चे एबेकस से जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन स्क्वायर्स, वो बच्चा एबेकस से सीख रहा है। देन चौक, हमने जिस तरह सीखा ब्लैक बोर्ड यूज, हमारे पेरेंट्स में ब्लैक बोर्ड जलाया था, हमने उससे बहुत कुछ सीखा। फिर हम बच्चे अपनी ही टॉय से बहुत कुछ एक्सप्लोर करना सीखते हैं, उनके टैलेंट सामने आता है। बच्चों को साइकिल चलानी नहीं आती, बट जब उनको साइकिल लाके दे दी जाती है वो अल्टीमेटली साइकिल चलाना भी सीख लेता है। इसी तरीके से आप भी देख सकते हैं जिन बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होती है पेंसिल होल्डिंग में, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स उन्हें चौक पकड़ा देते हैं, बोर्ड देते हैं, तो बच्चे की पेंसिल होल्डिंग काफी हद तक उससे भी ठीक हो सकती है। तो टॉयज इंकरेज करते हैं, हम बच्चों को जो है वो बहुत सी चीजें बोर्ड के थ्रू भी सिखाते हैं, हम बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू भी सिखाते हैं। वो नहीं, कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाती हैं, लेकिन अगर हम वही चीज अगर टॉयज के थ्रू सिखाते हैं तो बच्चे को बहुत जल्दी वो चीजें आ जाती हैं। नंबर 8, टॉयज हेल्प किड्स रिलेट स्टीम टू द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चों को स्टीम के थ्रू, बच्चों को स्टीम के थ्रू जो है वो हम बहुत चीजें सिखा सकते हैं, कुकिंग, रनिंग, बिल्डिंग। आप कुकिंग में ही देख लें कितनी चीजें आ जाती हैं आपकी। आप पिज्जा के थ्रू सिखा सकते हैं, आप बच्चों को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नेम सिखा सकते हैं, आप बच्चों को कलर सिखा सकते हैं इसके थ्रू के व्हाट आर द कलर्स ऑफ द वेजिटेबल्स, व्हाट आर द कलर ऑफ द फ्रूट्स। ठीक है, हम इंग्रेडिएंट्स कौन से डाल रहे हैं हम बच्चों को बताते हैं, 1 स्पून, 2 स्पून। हम बेसिकली कुकिंग के थ्रू भी बच्चों को बहुत चीजें सिखा सकते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा टॉय से खेल रहा है, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि बच्चा बहुत चीजें सीखते हैं टॉयज के थ्रू। आपके बच्चे ने जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, प्रॉब्लम सॉल्व किया, सोचा, तो कोई लेगो, जैसे लेगो हम लेते हैं तो लेगो के थ्रू बच्चे बहुत चीजें बना लेते हैं, घर बना लेते हैं पूरा लेगो से। तो बच्चा सोचता है तो बनाता है। देन लास्ट,
टॉयज हेल्प इंटीग्रेट द आर्ट्स इनटू स्टीम प्रोजेक्ट बाय एनकरेजिंग क्रिएटिविटी। बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत है, बहुत है, ये एक कहना चाहिए आपको, तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा ही होता है। क्रिएटिविटी हर बच्चे के अंदर होती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस क्रिएटिविटी को कैसे बाहर निकालते हैं। तो बच्चा, सबसे बड़ी बात ये कि क्रिएटिविटी यानी कि आर्ट्स के थ्रू जितना बच्चा आपसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, आपसे बात कर सकता है ना, वो आपसे फेस टू फेस वो बात नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली आर्ट्स जो है वो बहुत हेल्पफुल है बच्चों की फीलिंग्स को समझने के लिए। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टीम लर्निंग इन एक्शन, ये मैं डिस्कस कर चुकी थी कि डिस्कस करना चाहूंगी। सॉरी, एग्जाम्पल जो है वो ये है कि लाइक one example of stream learning is action is a project based learning। project based learning प्रोग्राम जो है वो लोकल हाई स्कूल्स में होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को टास्क दिए जाएं, डिजाइनिंग और बिल्डिंग अप सोलर पावर्ड कार जो सोलर से चलती हो। बच्चे बिल्कुल, अब कुछ स्कूल्स में ये चीज मैंने देखी भी है कि ये स्टार्ट हुई है होना, कि बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, साइंस एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं। बहुत बच्चों ने ऐसी ऐसी चीजें भी बनाई हैं डेफिनेटली, जो हम खुद हैरान थे कि ये बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं तो बच्चे कर रहे हैं। तो ये कोलेबरेशन हो सकती है बिटवीन एन आर्ट एंड म्यूजियम टेक्नोलॉजी कंपनी, जो लाइक दे क्रिएटेड एन इंटरैक्टिव एग्जिबिट दैट अलाउ विजिटर्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट वर्क्स ऑफ आर्ट यूजिंग वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। ये जो है वो हम बच्चों को इस तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं कि हम ऐसे जो है बच्चों में कॉम्पिटिशन्स रखवाएं। हम बच्चों को जो है वो ग्रुप्स के थ्रू ऐसी एक्टिविटीज दें कि बच्चे जो है वो अपनी थिंकिंग को जो है वो किसी भी तरीके से, जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको बाहर लेकर आए। Thank you so much and बस for listening me, and then last but not least, challenges and opportunities। challenges and opportunities जो है वो हम थोड़ा फेस करेंगे अभी, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज को स्टेप बाय स्टेप होने में। many schools and organization do not have the funding or equipment necessary to fully embrace STEAM learning। it's a main reason, ये एक मेन पॉइंट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग नहीं होती है कि वो टीचर्स को इस हद तक ट्रेन कर सकें कि वो एक इफेक्टिवली स्टीम लर्निंग कॉन्सेप्ट दे सके। ठीक है, तो इस पे थोड़ा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड वी कैन डेफिनेटली बेटर वर्क फोर्स बच्चों के लिए कर बना सकते हैं। उनकी जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो एजुकेशन की तरफ ले जाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट डेफिनेटली एक चैलेंज है हमारे लिए, जो हमें थोड़ा सा वक्त के बाद इंशाल्लाह ताला हम इस पे काबू पा लेंगे। एंड ओके, thank you so much and jazakallah all of you. Allah Hafiz. Take care everyone.